Okay, so 1 second. So good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Namaste. A very warm welcome to each and everyone present here. Hare Krishna. Namaste. Just a confirmation, क्या मेरी आवाज properly audible है? Is my voice is audible? If yes, then please give me a thumbs up. Yes. Right? Okay, great. So, जिस तरह से 1 second. I am excited. I would also love to know from which all places are you all from? कहाँ से हैं? Please मुझे एक बार बता दीजिए. Maybe गोवा, मुंबई, हरिद्वार, Delhi, so that we'll also come to know from which all places you all are from. Is it Delhi? Dehradun. Okay. Gujarat, Bhopal, Uttarakhand, Kashipur, Indore, Dehradun, Mumbai. Okay, Kotdwar. Mumbai. Okay, so majority are from Mumbai, but yes, we have from different parts. Sangli, West Bengal. Great. So I'm your host for today from Goa. And without much ado, let me start first with the prayer. Okay? तो सभी से अनुरोध है अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाते हैं. Let's ground down to call upon the beautiful higher power which has made all of us capable to contribute this beautiful knowledge with you. Let us join both palms firmly, pressing at the heart center. We'll make a small prayer. Oh. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा. Imbibing the warmth, let us rub both palms together. अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें. And let's place them over the eyes. Great. Namaste to each and everyone present here once again. Dosto, as we are embarking into a new journey, it is very important to understand the major goals that we are going to lay out. So before I begin, I would like to also know how many of you all are comfortable with only Hindi? How many are comfortable with only English? And how many both? So if you are only Hindi, then please let me know H. If you are only English person, E. Otherwise, please type B for both. Matlab, if you are comfortable with both, it would be better for us, but still would like to know, ताकि हमें पता चले overall क्या कैसा क्या scene है. So it's B, 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 H, B, 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 B. So great, majority. अगर हम polling करते तो B it would have been the highest one, but still we would also cater to H as well and E as well. ठीक है. So with that, मान लेते हैं कि we are now ready. Everybody has joined in. अब lock करते हैं. अपनी कुर्सी की बेटी बांध लेते हैं and we'll start. Okay. So let me first introduce with our major goal. जैसे कि आपको पता है परिज्ञान योगालय का main focus तो यही है that we want to unleash the yogic potential within us, right? So when we talk about us, it is us, right? So when it's about yogic potential, it has to be all round, है ना? May it be at academic level, may it be physical level, spiritual level, whatever so, right? तो इसीलिए हमारे classes, especially on the yoga background, are being conducted both in online, both in practical manner as well as theoretical way. So we have classes for both of it. Right? And major aspect ये है कि आपके इस परिज्ञान family की खासियत है that everybody is very much interactive in terms of discussing their viewpoints as well as discussing their major concerns related to the exam specific, health specific, whatever it may be. तो इसीलिए हमारे classes के दौरान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी अपने आप से commit होना पड़ेगा that yes, now that we are starting on this journey, we have to be committed with it. So let me start with a short intro about what Parigyan is all about. So basically, we started off with sessions to be conducted with the base purpose of imparting this yogic knowledge जो हमने सीखा, जो हमने experience किया, उसको आपके सामने साझा करने के लिए we got a good bunch. So I previously started with as a partner of Samyukta Yoga. बहुत सारे आप जानते होंगे मुझे. And then drilled
learned the basics, they've learned major loopholes that would have been considered, and started with this non-profit education which seeks to transfer and transform lives of people with the knowledge of yoga scriptures. तो students हमारे backup में बहुत सारे हैं, they are very actively involved. And now let me discuss about what are our pride, है ना कहते हैं. So हमारे coaching में जो अभी as a teacher है, who had been as a student previously, Gyan Prakash Kumar, he is UGC NET JRF Air 1 AIR1. जिस एस्टीम्ड एग्जाम की आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं, उस एग्जाम को भली भांति समझ के उनको पूरा क्वालिफाई करने की ताकत हमारे टीचर्स में रही है, एंड दे ऑल परस्पायर एंड एस्पायर टू टीच यू द सेम. तो without much ado, let me introduce Gyan Prakash sir. I would request sir to please put your video on if it is there. Yes. 1 second. Okay. Okay. So सर के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहती हूँ, because many of us know him, right? So गागर में सागर बनने की ताकत रखते हैं. I will have this major tagline which I usually say. So I would want him to introduce himself in short and major goal or aim behind the Parigyan Yogalaya. So, sir, you may take over. Unmute. ठीक है. सो बहुत बहुत थैंक यू मैम. सभी को नमस्ते. मैं ज्ञान प्रकाश. मेरी वीडियो क्लियर है? Yes. ओके जी. सभी को नमस्ते. मैं ज्ञान प्रकाश और बस एक आप ही की तरह इंसान हूँ, और भगवान के कार्य को करने के लिए जो भी गिलहरी की जैसी मेरे अंदर क्षमता है, तो भगवान राम के काम में जो है गिलहरी की भूमिका में मैं यहाँ पे हूँ. बस यही मेरी छोटी सी पहचान है, बाकी कुछ नहीं है. तो मैम आप आगे बढ़ाइए, बाकी हम अपनी बात आगे रखेंगे. Okay, so we also have Shobha ma'am, who was also a student and now being qualified as a NET. She holds this full and formal confidence as well as pride to teach you all with utmost zeal. बहुत सारे जो हमारे बैच में पहले भी रह चुके हैं, they know how she dedicatedly she teaches, right? So Shobha ma'am, आप एक बार unmute हो जाइए. Let me spotlight you as well. Is she there? The answer, she is there. कि भाई she कौन से नाम से जुड़ी है? Okay, 1 second. Okay, maybe okay. आई थिंक शोभा मैम अभी नहीं है क्या? मैं हूँ सर. हाँ. Is this okay? Okay. वीडियो ऑन करिए. वीडियो भी ऑन किया मैंने. मैं बोल नहीं पा रही. Done. आया मैम मेरा वीडियो? क्योंकि Yes. हाँ नहीं आ रहा है. ओके एनीवेज, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. एंड मैं यहाँ पर टीचर हूँ अपने परिज्ञान योगशाला में, और मेरा सिर्फ एक ही इंट्रोडक्शन है कि मैं बहुत ही पैशनेट हूँ अबाउट टीचिंग, है ना. और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और उनको समझ में आता है, वो जब सामने से बोलते हैं मैडम समझ में आया बहुत अच्छे से. सो दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड. बेसिक, एकदम छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं है. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. आगे आप कंटिन्यू करो मैम, हम अपने टाइम पे करेंगे बस. यस. सो कहाँ भी जाता है ना, इंट्रोडक्शन सही मायने में स्टूडेंट्स करते हैं, राइट? सो यू विल ऑल्सो गेट टू नो व्हेन स्टूडेंट्स, हमारे जो बैचमेट्स हमारे बैच के मेंबर्स रह चुके हैं, एंड दे वुड एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस हाउ देयर टीचर्स पैशनेटली टीच, राइट? सो नेक्स्ट, तो हाँ, दिस इज अबाउट मी. मुझे लगता है कि शायद आप सभी मुझे जानते होंगे, so I did not discuss much. Okay,
So this is about our channel Parigyan Yogalaya, which is entirely based on yoga, may it be related to academic studies, may it be physical practices. तो आप जरूर इसको subscribe कर सकते हैं. You will also get to know quite a few good contents with respect to your paper. Okay, so with that, let me start with a small story. Okay, क्योंकि मुझे लगता है एक कहानी 100 शब्दों के बराबर होती है. फिर एक विचार अगर हम बुनियादी तौर पर रुझाना चाहते हैं, then what is better than a story, right? So let me open this story for you all. ये भी मैंने अपने YouTube पे हमारे डाली थी, but it is unlisted however. So just give me a confirmation whether it is okay. One second. Let me share the screen with that. Share sound. Share. Okay. So. Okay. Let me start. एक बार कृष्ण और अर्जुन भ्रमर पर निकले थे. Confirmation is was the voice audible? अगर yes, अगर आ रही थी तो give me a thumbs up. आ रही है? Yes. A while ago. Yes, right? Okay, okay, ठीक है. बस perfect. तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा. अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी. स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पाकर वो ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सपने देखता हुआ अपने घर की तरफ लौट चला था. किंतु उस ब्राह्मण का दुर्भाग्य उसके साथ ही चल रहा था, इसलिए राह में एक लुटेरे ने उस ब्राह्मण से वो पोटली छीन ली. इस कारण वो ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लगा. अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा. तो ब्राह्मण ने पोटली को लूटे जाने का पूरा किस्सा अर्जुन को बता दिया. ब्राह्मण की ये व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई थी और इस बार अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बड़ा ही मूल्यवान एक माणिक दे दिया था. अपने घर आकर ब्राह्मण ने उस माणिक को एक पुराने घड़े में छुपा कर रख दिया. इस बीच ब्राह्मण के दुर्भाग्य ने फिर एक ऐसी लीला रच दी कि ब्राह्मण की स्त्री जो नदी में पानी लेने गई थी, उसका घड़ा राह में टूट गया था. इसलिए ब्राह्मण की पत्नी घर वापस आई और उस पुराने घड़े को लेकर पानी लेने चली गई. ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही घड़े को नदी में डुबाया, उसमें रखा माणिक नदी के पानी में बह गया. ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो वो अपने भाग्य को कोसता हुआ अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने चल दिया. अगले दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा तो उन्होंने उसके पास जाकर उसका कारण पूछा. तो ब्राह्मण ने उन्हें माणिक के खो जाने की सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई. तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक इसका भाग्य नहीं पलटेगा तब तक इसके जीवन में सुख नहीं आ सकता है. ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए और आगे बढ़ गए. ब्राह्मण अपने घर जाता हुआ ये सोच रहा था कि प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया, प्रभु की ये कैसी लीला है. ब्राह्मण ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी दृष्टि एक मछुआरे के जाल पर पड़ी. उसने देखा कि मछुआरे के उस जाल में एक मछली फंसी हुई है और वो छूटने के लिए तड़प रही है. ये देख ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई. उसने सोचा इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए. ये सोचकर उसने उन 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर डाला और मछली को अपने कमंडल में डालकर नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा. मछली को कमंडल में डालते समय उसके मुंह से कुछ गिरा था तो उस ब्राह्मण ने देखा कि वो वही माणिक है जिसे ब्राह्मण ने अपने घड़े में छिपाया था. माणिक पाकर ब्राह्मण खुशी में चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया. तभी भाग्यवश वो लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी. उसने ब्राह्मण को मिल गया चिल्लाते हुए सुना तो वो भयभीत हो गया. उसने सोचा ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है.
अब ये जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इस डर से वो ब्राह्मण के पास आकर रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसकी लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। दोस्तों, इस घटना पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि उस ब्राह्मण को जब तुमने थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा था, किंतु जब मैंने उसको 2 ही पैसे दिए, तब उसने दूसरे के यानी एक मछली के दुख के विषय में सोचा था। इसलिए जब आप दूसरे के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं और जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसका भाग्य भी पलट जाता है। Okay. So, okay. How many of you all have understood this? What was it about? It was about the concept which we wanted to portray. Let me share this screen of whatever portray. Just a minute. Share the screen. एक बार कृष्ण और अर्जुन भ्रमर पर निकले थे। तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उस Okay. So the major idea which I wanted to portray was the same thing. If we want to happiness for an hour, we can take a nap. But if we want happiness for a day, we can go for a picnic. If we want happiness for a month, we can get married. But if we want something which we want for a lifetime, right, then we should always be helpful to somebody. And that was the main idea behind Parigyan, where we thought of sharing what we really have and what we prepared for all of you, right? So, इसीलिए we consider that there is always this higher power which is guiding us to do this activity with all of you. And let me share this screen. Yes. So that is why we have our teacher, जिन्होंने she has this manager level experience, but she is here to help you out to drill for this examination. We have our sir who is already an employee in TCS, but he's here to help you understand how easy it can be if we really dedicate our time for this exam. Also, since now, big congratulations to sir कि अब वो PhD करने जा रहे हैं SVASA में. Then with me as a facilitator for you, helping you out if you find any difficulty in the process. ठीक है? So क्लासेस के दौरान लाइव क्लासेस रहेंगी ही साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी. सो व्हाट वी थॉट ऑफ एज लास्ट टाइम कि जैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है दैट लिंक इटसेल्फ विल अपलोड डायरेक्टली, सो यू कैन क्लिक ओवर देयर ऑन द क्लाउड इटसेल्फ, है ना. तो हमारा ऐप भी है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे. डेली क्विज रहेगा, डेली क्विज इन टर्म्स ऑफ द क्लासेस के दौरान जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो उस दौरान दे विल टेक अप द क्वेश्चंस. But after the session unit gets over, we will also have topic wise test series, then group discussion, which will foster an interactivity and thereby improving the concept clarity with respect to the topic. ठीक है? So with this an honest approach, एक sincerity
पूर्ण सिंसियरिटी के साथ we have planned this course curriculum which is designed to seek and help to extend this help to crack UGC NET JRF examination and to achieve the dream of professorship in yoga science, right? So the mode will be for 4 months, specifically using Zoom, and the language, as you all have agreed to, it will be both, and the contribution amount is voluntary basis. जैसे आप में से बहुत सारे जन पहले भी जुड़ चुके होंगे, so you know how dedicatedly class teachers पढ़ाते हैं with that same intensity that they want you to qualify. So ये आपकी खुद की मान्यता होनी चाहिए that you should be feeling that I owe this to my teacher, and to improve the resources and to fund the resources, if you feel, then you can contribute जितना आपको मन करता है, as much as you deserve the sessions are, because ultimately इसको आगे बढ़ाना भी है हमें, right? Then for more details you can click on the link below. So now this link is about the Google page, you can check it out online as well. Parigyan Yogalaya आप type करोगे, you will get to see the Google page, right? So with that, let me now move ahead for the next part. Okay, so I would now give my controls to Jan sir to take over. Yes, so let me unmute. Okay. ठीक. तो सभी को नमस्ते। और मैम ने काफी अच्छे तरीके से सारी बातों को रखा और यहाँ पे आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है एक बहुत बड़े फैमिली के बीच। परिज्ञान योगालय जो है कोई क्लासेस नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, इट्स अ फैमिली। और फैमिली का अगर अर्थ आपको समझना हो तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और एक फैमिली है, और घर में जो है दूध है, 1 लीटर दूध है, और किसी कारणवश क्या हुआ कि 1 लीटर दूध जो है वो गिर गया और थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो दूध किसे मिलेगा? बट ऑब्वियस जो उसका बॉस होगा उसको मिलेगा। बट जो फैमिली के अंदर वो दूध किसे मिलेगा? या तो बच्चे को मिलेगा या तो कोई बीमार होगा उससे मिलेगा। तो परिवार एक भाव है, परिज्ञान एक कोई कोचिंग क्लासेस नहीं, परिज्ञान एक भाव है। कैसा भाव भाई? खुद अच्छा बनने का और दूसरे को अच्छा बनाने का। ठीक है, परिज्ञान क्या है? परिज्ञान एक परिवार है जहां पे हम सब मिलकर के आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। परिज्ञान और क्या हो सकता है भाई? परिज्ञान एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है हम मानव की सेवा कर सकते हैं। कहा गया है कि सबसे बड़ी जो संसार की सेवा है वो अपना सुधार है। अगर आप अपना सुधार कर लें तो संसार की सबसे बड़ी आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका अपना सुधार नहीं हुआ तो आप किसी को क्या बोलोगे? आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे महापुरुष लोग हैं, जैसे विवेकानंद हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप पर काम किया, और जब उन्होंने अपने आप पे काम किया तो आज भी हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको देख करके फॉलो करते हैं उनको, और अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतियों को जो है ये करते हैं। और इन सबसे बढ़ करके जो है परिज्ञान जो है एक सपना है। कैसा सपना? इस विश्व ब्रह्मांड को स्वर्ग बनाने का सपना। ठीक है, और स्वर्ग कैसे बनता है? जब इंसान देवता बन जाएगा तो स्वर्ग अपने आप हो जाएगा। और देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। तो जो भी हमारे पास है, जो भी मैम के पास है, जो भी हमारे शोभा मैम के पास है, इवन क्लास के भी बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे, देने का भाव हमारे अंदर क्या था भाई? नेट जीआरएफ की हमने पढ़ाई की थी, हमारे पास कुछ ज्ञान था, हमारे अंदर भावना थी कि समाज को कुछ हमें देना है, कुछ लोगों को कुछ देना है जो कि कुछ आस लगा करके बैठे हुए हैं। हमारे अंदर ये भाव था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिसके करने के बाद मेरे को आत्मसंतुष्टि मिले। तो ये देने का भाव जो है यही हमें देवता बनाता है, और जब हम अपने आप देवता बन जाते हैं तो ये धरती अपने आप स्वर्ग बन जाती है। तो परिज्ञान एक बहुत बड़े विजन के साथ शुरू किया गया, और ऑब्वियसली इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो आदरणीय हमारे गुरु, जिन्होंने मुझे जो है एक गांव से उठा करके जो है इस लायक बनाया कि आज जो है हमारे को 10, 20, 30, 50 लोग सुन रहे हैं। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, फाउंडर ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, और एक और हमारे गुरु हैं SN गोयंका जी, जो कि विपस्सना फाउंडेशन के हेड हैं। तो इन दोनों गुरुओं से जो मैंने सीखा, आप ये कहें कि समाज के प्रति जो मेरे अंदर पीड़ा है वो देन है आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की,
और जो मेरे अंदर सेल्फ रिफाइनमेंट की जो पीड़ा है कि हम अपने अंदर अपने आप को कैसे ठीक करें, ये जो देन है वो एस.एन. गोयनका जी। तो आत्मनिर्माण के साथ जो है समाज निर्माण का कार्य, ये दो सूत्रों को मैं लेकर के आगे बढ़ा हूं। आप इन दोनों के जीवन को देखिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आगरा के नजदीक एक आंवल खेड़ा छोटा सा गांव है, वहां पे वो जन्म लिए। मात्र 6ठी क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की, 6th क्लास तक। और उनके जीवन को आप देखिएगा तो एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, हर डायमेंशन को उन्होंने बिल्कुल पीक तक एक्सप्लोर किया है। जब उनको एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो है 3 बार वो जेल गए, ठीक है, 3 बार जेल गए और पूरा का पूरा एक बार लाठी खाते रहे, लेकिन तिरंगा को जो है छोड़ा नहीं, दांत से तिरंगे को दबा लिया और दांत से दबा लिया, मारते मारते जो है अंग्रेजों ने उनको बेहोश कर दिया, बट तिरंगा उनके मुंह से निकला नहीं। जब हॉस्पिटल में उनको होश आया तो दांतों के अंदर जो थोड़ा सा तिरंगा फंसा हुआ, यह देख करके सब कहा कि अरे ये तो आजादी का मतवाला है, और इससे उनका नाम पड़ गया श्री राम मत। जब वो संपादक थे तो सैनिक अखबार के संपादक हुए, जब वो लेखक बने तो 3200 पुस्तकें लिखी, 3200 पुस्तकें उन्होंने लिखी और उस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगाया, सारा का सारा फ्री में अवेलेबल। जब संगठन की बात किया तो गायत्री परिवार में जो है 18 लगभग जो है करोड़ लोग अभी हैं गायत्री परिवार के, और हमारे जैसे भी कुछ लोग हैं, बहुत हमारे जैसे बहुत सारे इवन लोग हैं जो कि कुछ काम करते हैं समाज के लिए, हर क्षेत्र में काम करते हैं। इस समाज के नव निर्माण के लिए 108 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। तो बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आप योग से जुड़े हुए हैं तो आपके योग के सिलेबस में भी जो अर्वाचीन योगी हैं उनमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को पढ़ना। उनके सिद्धांतों से मैंने सीखा कि चलो भाई, जीवन जीने का नाम क्या है भाई, कि एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर की, तो वही इंसान बनने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। और देखिए, जब उन्होंने सदगृहस्थ की बात की तो उनके 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी, और उन सबको उन्होंने पाला पोसा, सबको, किसी को टीचर बनाया, किसी को ये बनाया, किसी को वो बनाया, अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी भी निभाई। जब वो साधक के रूप में आए तो 24 साल तक 24 लाख के 24 महामंत्र उच्चारण किया गायत्री मंत्र के मुझे, वो भी जौ की रोटी और छाछ करके खा करके, न नमक खाया न मीठा खाया। तो ऐसे व्यक्तित्व हैं। एस.एन. गोयनका जी को देखें तो वैसे ही, वो कहाँ पे थे भाई, वो बाहर थे, विदेश में थे, ठीक है ना, वर्मा में थे। वो वर्मा में एक बहुत बड़े जो थे बिजनेसमैन थे। अचानक से उनको कोई रोग हुआ और वो जो है अपने गुरु के पास जो है गए, और जब वहां पे गए वो तो वहां पे उन्होंने विपश्यना विद्या को सीखा और सीख करके वापस भारत में आए, और जो विद्या मर चुकी थी विपश्यना, जो कि सेल्फ रिफाइनमेंट की सबसे अच्छी विद्या है, उस विद्या को दिया। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे वो विपश्यना फाउंडेशन हो, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, और भगवान के काम में कभी कोई कमी नहीं आती, ठीक है ना। आप देखिएगा तो करोड़ों का एम्पायर जो है विपश्यना फाउंडेशन का भी है, और करोड़ों का एम्पायर जो है गायत्री परिवार का भी है, ठीक है। तो भगवान का अगर सच्चे हृदय से कोई काम लेकर के चला जाए तो वह काम सफल होता ही होता है, वह कभी भी असफल नहीं होता है। तो बस यही भाव है, इसी भाव के साथ परिज्ञान योगालय को भी खोला गया। देखिए, ठीक है, इसी भाव के साथ जो है परिज्ञान योगालय को खोला गया है। और परिज्ञान योगालय में और भी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से क्या बातें हो सकती हैं। एक बात और है कि परिज्ञान में क्या एक्स्ट्रा है भाई, ऐसी और भी सारी संस्थाएं चल रही हैं, तो उसमें और परिज्ञान में क्या फर्क, तो उसमें और परिज्ञान में बस एक फर्क है, भावना का फर्क। आप 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खाते हैं, 5 स्टार होटल में जब आप जाके खाना खाते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल सकता है। विश्व ब्रह्मांड में जैसी भी खाना होता है, जितना भी बेस्ट खाना है, वो सारा खाना आपको मिल सकता है, लेकिन उस खाने का तोड़ जो है माँ के खाने की, माँ के जो हाथ का नमक रोटी बना होगा, उसके स्वाद में उसकी कोई टक्कर नहीं, वो हेल्थ में भी नहीं टक्कर होगी। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर ये भाव है कि मेरा बेटा जब इसको खाएगा तो बहुत बड़ा बन जाए, मजबूत बनेगा, उसकी जो है बुद्धि, विद्या, शक्ति सब बढ़ेगी। लेकिन जो 5 स्टार होटल में खाना बना रहा है शेफ, उसका ये एम है कि मैं इतना अच्छा खाना बना दूं, मैं कितना कमा लूं। तो भावना का मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत फर्क होता है। एक ही चाकू है, एक चाकू से हम किसी का मर्डर करते हैं तो हम जेल में जाते हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं, और वही चाकू है, अगर उसी चाकू से हम किसी का ऑपरेशन करते हैं तो हम डॉक्टर कहलाते, सब हमको भगवान मानते, भगवान के दूसरा रूप डॉक्टर को बनाया। तो भावना का बस फर्क है। तो परिज्ञान योगालय जो है एक अच्छे भावना के साथ जो इसको शुरू किया गया, और बिल्कुल हम लोग बात तो करते हैं, हम लोग योग के विद्यार्थी है, हम लोग साइंस के विद्यार्थी नहीं है,
हम लोग हिस्ट्री के विद्यार्थी नहीं है, हम लोग ज्योग्राफी के इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी नहीं है, हम योग के विद्यार्थी हैं। और योग की परंपरा जो है भारत की बहुत महान परंपरा रही है, ऐसी परंपरा रही है जो जीवन के जो त्रिदोष हैं, हमारे त्रिगुण जो हमारे हैं, जो 3 प्रकार के जो हमारे क्लेश हमारे जीवन में है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों से मुक्ति का जो विज्ञान था वह योग था। तो योग को केवल हम पढ़े क्या, योग को केवल जो है हम लिखे क्या, योग से केवल हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके भाषण दे क्या? अरे योग हमारे जीवन में भी दिखना चाहिए। अगर हम योग के विद्यार्थी हैं तो भले जींस पैंट में हो, लेकिन पतंजलि योग सूत्र हमारे चरित्र से जो है दिखना चाहिए कि सतु दीर्घकाल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ठीक है ना, कि निरंतरता हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में श्रद्धा हो, हम किसी काम को करें तो श्रद्धा के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें, तो अभ्यास होता है। तो वो अभ्यास हमारे जीवन में दिखना चाहिए, वो वैराग्य हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हम बोलते हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्था, अपरिग्रह, तो ये 5 चीजें जो महाव्रत है वो हमारे जीवन में नहीं दिखा तो फिर योगी किस बात? तो परिज्ञान योगालय केवल आपको नेट जेआरएफ की तैयारी नहीं कराता, ये जो है अपने आपको जीवन में भी अच्छा करने की तैयारी कराता है। अब ये बताइए, आप लोग पूछे कि अच्छा ये बताओ भाई ज्ञान भाई, आप तो ये बोल रहे हो कि जीवन जीने की तैयारी करता है, आपने योगी बन गए क्या? आपने समाधि को प्राप्त कर लिया क्या? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने भी समाधि को अचीव नहीं किया, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूं, मेरे अंदर भी हजारों बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयां भी है। जीवन का नाम है कि अपने अंदर की अच्छाइयों को हम बढ़ाएं और अपने अंदर की बुराइयों को हम कम करें। हर महापुरुष ने अपने जीवन में यही किया है। एक समय जो महात्मा गांधी सिगरेट पिया करते थे, चोरी किया करते थे, इतना वासना में ग्रस्त थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो जो है घर में वासना में लिप्त थे। लेकिन वही महात्मा गांधी के अंदर का जब योग जागता है तो इतना बड़ा योग होता है कि वो काम वासना को जीत लेता है। इतना बड़ा अहिंसा का पुजारी होता है कि भगवान महावीर के बाद अगर अहिंसा में किसी का नाम आता है तो महात्मा गांधी का नाम आता है। तो इसी तरह से जो है मैं भी आप ही की तरह हूं, हम दोनों मिलकर के, मैंने शुरू में बताया कि परिज्ञान जो है एक परिवार का नाम है जिसमें कि हम सब मिलकर के आपस में एक दूसरे के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो ये जो है परिज्ञान योगालय, परिज्ञान योगालय की ये फिलॉसफी है, ठीक है। अब आते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे। तो मोस्टली जो है मैं कवर अप करूंगा आपका पार्ट पेपर 2 को मैं पढ़ाऊंगा, पेपर 2 पढ़ाऊंगा। कुछ टॉपिक जैसे मैथमेटिक्स हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया और आईसीटी हो गया, कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको पेपर 1 का, ठीक है। पढ़ना है, पढ़ाने का स्ट्रेटजी क्या रहेगा भाई? सिंपल सा स्ट्रेटजी रहेगा। अगर मेरे को शर्ट पहनना है, ठीक है ना, तो कोई फटा पुराना भी अगर शर्ट हो उसको पहन के हम देख लें तो पता चल जाता है कि अच्छा शर्ट इस तरह से बनता है, इसका स्लीव जो है इस तरह का होता है, इस तरह के कपड़े होते हैं, इस तरह की सिलाई चलती है। तो उसका मेन रीजन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है में हमारा फोकस होगा, बिल्कुल ही फोकस्ड स्टडी करना है, क्योंकि नेट जेआरएफ एक कंपटीशन है, ये कोई एमए का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपका जो है बेसिकली टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, टू दी पॉइंट पढ़ना है। और सबसे अच्छा तरीका होता है टू दी पॉइंट पढ़ने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं लगभग 80-90% जो है आपका सिलेबस कवर अप होता है। अगर आप एक सेट कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो उससे आपका काम होता है। तो मेन मेरा प्राइम फोकस रहेगा सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे। कैसी इंपॉर्टेंट बातें भाई? कुछ चीजें हमने जीवन से सीखा है। आप जो है नदी के उस तरफ है, मैं नदी के इस तरफ हूं, तो हमने कुछ एक्सपीरियंस से चीजें सीखा है, कुछ हमने टेक्निक सीखा है, कुछ हमने टूल सीखा है, उन सबको हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ जो है अब होता है कि पढ़ाई तो हर कोचिंग में होती है, तो बहुत सारे कोचिंग है और बहुत अच्छे कोचिंग है और बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो कि मेरे से बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन उन सब में जो है केवल पढ़ाई होती है, आपको पढ़ना कैसे है ये कहीं नहीं सिखाया जाता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि मैं अपने बच्चों को जीवन साधना भी सिखाता हूं। हमारे सारे विद्यार्थी मिलकर के नवरात्रि की साधना करते हैं, उसमें हम लोग संघ प्रक्षालन करते हैं, उसमें हम लोग 9 दिन जो है ध्यान करते हैं। ध्यान के साथ साथ और क्या करते हैं भाई? योग करते हैं। योग के साथ साथ और क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। अपने जीवन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अब आप बताइए, आप भरपेट अगर खाना खा के पढ़ने बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, सर में दर्द होने लगेगा, मन में बेचैनी होगी। तो किस तरह के आहार को हम कंज्यूम करें? किस तरह का हमारा मन में जो है बहुत सारा प्रेशर आता है। कई बार जो अगर आप ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं तो इतना प्रेशर आता है, विश्वास नहीं करेंगे, पूरा का पूरा मसल आपका स्टिफ हो जाए। और ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। एग्जाम के 2 दिन पहले जो है मेरा पूरा मसल स्टिफ हो गया। क्यों स्टिफ हो गया? क्योंकि जो ईमानदारी से मेहनत करता है ना, उसको डर होता है कि अरे कुछ गलती हुआ तो क्या होगा, तो उसको कैसे दूर किया जाए, जो एग्जाम का प्रेशर है उसको कैसे रिमूव किया जाए। इसलिए शुरुआत से ही हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने जीवन में जो है योग को धारण कीजिए, अपने जीवनचर्या को सही कीजिए, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को ये कीजिए।
कई सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे सर मेरा तो एमए का कोचिंग भी है और मेरा ये नेट का भी है, मैं एमए करूं कि नेट करूं। अरे भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझो एक बात को, जो कहता है कि मैं व्यस्त हूं वो झूठ बोलता है, समझ गए ना? जो कहता है कि मैं व्यस्त हूं वो झूठ बोलता है। अगर वो कहता है कि मैं व्यस्त हूं तो वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। जितना भी दुनिया में संसार में व्यक्ति है सबके पास मात्र भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटा से ना 1 मिनट ज्यादा दिया है ना 1 मिनट कम दिया है। उसी 24 घंटे में जो है कोई जो है इतना कमाता है कि पूरे संसार को वो खाना खिला सकता है, पूरे संसार का पेट भर सकता है, और कोई इतना भी नहीं कमाता कि वो अपना पेट भर सके और अपने परिवार का पेट भर सके। दोनों में फर्क क्या है? अस्त व्यस्तता का फर्क है। वो अस्त व्यस्त है, ना उसका खाने का समय ठीक है, ना सोने का समय ठीक है, ना पढ़ने का समय ठीक है। वो एक काम करता है 10 काम छूटता है, एक काम करता है 10 काम छूटता है, ठीक है ना? तो अस्त व्यस्तता को अगर दूर कर दिया जाए तो बहुत बात बनती है, समझ गया ना? मैं बिना नाम लिए हुए एक बात कहूंगा कि एक अगर करप्शन को केवल हटा दिया जाए, तो अगर बहुत सारी चीजों को फ्री में भी दिया जाता है फिर भी जो है एक अपने देश के राज्य का जो इकोनॉमी बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अरे भाई करप्शन में जाता है पैसा, करप्शन उसने खत्म कर दिया तो पैसे बच रहे हैं, उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, समझ गए? तो अगर हम अपने जीवन की जो अस्त व्यस्तता है उसको अगर रिमूव कर दे, अगर अपने जीवन की हम अपने बुराइयों को रिमूव कर दे, तो हमारे पास केवल अच्छाई ही बचेगा, और उस अच्छाई को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत टाइम होगा। आप समझिए ना भाई, मेरे को एग्जाम्पल देखिए, मैं 9 घंटे का जॉब करता हूँ, मैंने डिस्टेंस से एमए की पढ़ाई की है, डिस्टेंस से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है, और उसके बावजूद मैंने नेट जेआरएफ में टॉप किया है। कई सारे विद्यार्थी 2 साल 3 साल बीएससी करते हैं, 2 साल एमए करते हैं, उसके बाद कोचिंग करते हैं, उसके बाद भी उनका नेट जेआरएफ नहीं होता, वो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, समझ गया ना? तो अगर अंदर आपका जीवन बैलेंस है, अगर आपके जीवन में संतुलन है, तो आप जो है उन्हीं समयों के साथ बहुत काम कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने केवल नेट की पढ़ाई और जॉब ही नहीं किया, मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, ठीक है ना? मैं खुद पढ़ता भी हूँ, मेरी फैमिली भी है, मैं आईएएस की भी तैयारी करता था, अभी भी करता हूँ। तो 10-20 चीजों को मैं एक साथ कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ भाई? ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में जो है ना गलत चीजें नहीं है। जब मेरी 25,000 सैलरी थी तो मैं अपने फैमिली को दिल्ली में रख लेता था और किसी चीज की कमी नहीं होती थी। क्यों भाई? क्योंकि मेरा एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, मेरे अंदर संयम है, अर्थ का संयम है, कंजूसी नहीं है, संयम है। संयम और कंजूसी में बहुत फर्क होता है। कंजूसी में क्या होता है कि बैंक बैलेंस करोड़ों पड़ा हुआ है और खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है ना? और अर्थ संयम क्या होता है कि जहां पे जरूरत पड़े वहां पे पूरा भंडार खोल दिए, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे एक पाई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं की, इसको कहते हैं अर्थ संयम, समझ गए? तो अगर आपका जीवन संतुलित है तो बात बढ़ती है। तो हम आपको जीवन को संतुलित कैसे करना है इसको बताएंगे। जो भी हम अपने जीवन में सीखा है वही बताएंगे, हम नेट से देख करके नहीं बताएंगे। मैंने जो अपने जीवन में जितना भी सीखा है, अगर एक बात ही हमने अपने जीवन में सीखी है तो उस एक बात को हम सिखाने का आपको प्रयास करेंगे, उस एक बात को आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो अपने जीवन को संतुलित करेंगे। जब आपका जीवन संतुलित होगा तो आप पढ़ पाएंगे, और पढ़ पाएंगे तो काम को कर पाएंगे। पूरा सिलेबस को हम कोशिश करेंगे कि कवर अप करें। थोड़ी सी अस्त व्यस्तता हो जाती है, थोड़ी सी, हर समय मनुष्य का दिमाग एक तरह से नहीं होता है, और हमारे बहुत सारे यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, कई सारे हमारे माँ की उम्र के भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, कई सारे जो है हमारे दादाजी की उम्र के भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही सहनता, और मैं सहनता नहीं हूँ, आप सब लोग बोलेंगे, आप सब लोग बोलेंगे। अगर मैं कहीं गलती हुई तो आप मेरे को संभालिए, और आप कहीं गलत है तो हम संभालें, ठीक है ना? एक होता है ना ब्रिज बनता है, तो ब्रिज में क्या होता है, एक एक पाया जो है सबको सपोर्ट करता है, एक भी पाया ढह गया तो पूरा का पूरा पुल ढह जाता है। तो एक हम पुल बना रहे हैं, कहा किसका पुल बना रहे हैं? जीवन को अच्छा बनाने का। नेट जीआरएफ क्या है भाई? जब गाड़ी चलती है तो धूल अपने आप उड़ता है, जब अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे तो रिद्धियां, सिद्धियां, अचीवमेंट अपने आप आपको मिलती जाएगी, ठीक है ना? अपने आप जैसे धूल उड़ता है उस तरह से सिद्धियां आपके पास आती है। तो साधक जो है कभी सिद्धियों के बारे में नहीं सोचता, साधक कर्म के बारे में सोचता है, और हम सब योग साधक है, और हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है, तब हम योग से जुड़े हैं, ऐसे नहीं जुड़ सकते। ऐसे बताइए भाई, हमने फ्री कोचिंग रखा है, कोई पैसा नहीं लेते, फिर भी हमारे बीच में मात्र 63 बच्चे हैं। मैंने किसी को रोका है क्या? किसी को नहीं रोका। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका संस्कार है, आप सबका पिछले जन्म का कर्म है, जो हम सब लोग एक साथ जुड़े हैं। तो हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, और कहीं पे अगर मैं गलत हूं, सीधे क्लास में बीच में बोलिए कि सर आप गलत हैं, हो सकता है गलत, मैं भी इंसान हूं, और जब कभी आप गलत है तो मैं भी बोलूंगा। तो एक दूसरे की कमियों को हटाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे, बहुत क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको टेस्ट भी कराएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता।
आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए कि साइकिल जो है ये हैंडल होता है, ये पैडल होता है, ये चक्का होता है, इसको मैं पैडल चलाऊंगा तो ये साइकिल चलेगी। आप साइकिल चलाने जाएंगे, एक्सीडेंट कर जाएंगे, गिर जाएंगे। आप खूब पढ़ लेंगे तैराकी में ऐसे होता है, नीचे से बुआंसी फोर्स लगता है, नीचे जो है एमजी फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स को बैलेंस करना होता है, तब हम फ्लोट करेंगे। पूरा साइंस पढ़ लिया आपने, पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, लेकिन जब पानी में आप जाओगे नहीं तो आप तैरना नहीं सीख सकते। तो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे, रिकॉर्डिंग रहेंगी, आप लोग रिकॉर्डिंग सीखेंगे, सब काम करेंगे। अब अंत में बात आती है फी की। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2000 साल का इतिहास देख लीजिए, आज से 2000 साल का इतिहास दीजिए। कोई दो धनवान का नाम बताइए, ठीक है ना, जिसको कि दुनिया जानती हो, या दो नहीं 10 का नाम बताइए, एक दो तो हो ही जाएंगे। अगर हम 2000 साल के इतिहास को ध्यान में देखते हैं और घुमाते हैं अपने नजर को, तो पता चलता है कि मात्र दो ही अमीरों का हम नाम जानते हैं, पैसा वालों का, मात्र दो पैसा वाले का। एक था भामाशाह, जिसने क्या किया, महाराणा प्रताप के लिए अपने सारे के सारे भंडार खोल दिए, और दूसरा थे जुगल किशोर बिरला जी, जिन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के लिए अपने सारा का सारा धन छोड़ दिया। उसके अलावा किसी भी अमीर आदमी का नाम नहीं जानता कोई। अगर कोई जानते तो बता दीजिए, एक आध दो और हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे यही दो दिखा देते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास पैसा कितना है ये मैटर नहीं करता, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आपके अंदर भाव क्या है। अरे चंद्रशेखर आजाद के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन भाव था कि मुझे मातृभूमि के लिए कुछ करना है, कर गए। अरे भाई, रतन टाटा के जो जमशेदजी सर्वांगी टाटा थे, वो क्या थे, वो कुछ नहीं थे, लेकिन भाव था कि मुझे जो है अपने देश के लोगों के लिए काम करना है। और आज जो है टाटा ग्रुप इतना बड़ा कंपनी है, 100 से ज्यादा कंपनियां है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया टाटा ग्रुप कमाती है, उसमें 66 पैसा जो है डोनेट कर देती है अपने पूरे के पूरे सैलरी का। अगर टाटा का पूरा कंपनी मिला जाए तो विश्व का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन टाटा इतना ज्यादा चैरिटी करता है कि उसका धन हमेशा कम रहता है, ठीक है ना। तो भाव जो हमारे अंदर का होता है वो हमें महान बनाता है। जो हमारे आदरणीय श्रद्धानंद जी थे, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने जो है झोपड़ी में 27 झोपड़ी को उन्होंने अपना पूरा घर परिवार बेच करके 27 झोपड़ी से गुरुकुल कांगड़ी शुरू किया, और आज इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, और इतने बड़े बड़े विद्वानों को पैदा किया कि पूरा जो है आर्य समाज का जो है पताका जगह जगह फैल गया। दयानंद सरस्वती के पास ढेर पैसा था क्या? नहीं पैसा था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी महापुरुष के पास जो है ना बहुत पैसे नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि अमीरी में जो है ना कोई महापुरुष नहीं बनता, ठीक है ना। कहा गया, किसी कवि ने लिखा है कि जीवन डगर पे फूल है किसको यहाँ मिलता, अमीरी में यहाँ कोई कहाँ है महान बनता, कोई महान नहीं बनता। और एपी रतन टाटा कहा करते हैं कि मारे कोई पत्थर तो उन पत्थरों को जोड़कर मैं घर बना देता। तो अगर मेरे पे कोई पत्थर भी मार रहा है तो क्या करें, उन पत्थरों को इकट्ठा करें, दुखी नहीं होने मेरे को पत्थर मार रहा है, उन पत्थरों को जोड़ लीजिए और उसे घर बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट। तो पैसे की बात है, ठीक है, कई बार कमियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि किसी को अगर पैसा देने का, मैंने मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर है, घर में बहुत पैसा पड़ा होगा, उनको लगता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो मैं सीरियस नहीं होऊंगा, तो भाई वो लोग दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। कोई अगर ऐसे हैं जो जिन्होंने जीवन में बहुत कमा लिया, करोड़पति हैं, तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कई सारे विद्यार्थी पिछले सेशन में मैंने देखा कि फीस नहीं मैंने लिया, तो कई सारे विद्यार्थियों ने बताया नहीं कि सर पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन हमने खुद से चीजों को देख समझाया, सोचा समझाया, तो हमने रिसोर्सेज को, देखिए आपको कोई इशू हो ना, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। भगवान के काम में पैसे की कभी कमी आती नहीं। अरे मैं बचपन का मेरा उदाहरण है, मैं बचपन में लक्ष्मी पूजा मनाता था, मात्र 12 साल का था, और 5 रुपए में जाकर के जो है ना मैंने बयाना दे दिया। बयाना मतलब होता है कि पहले पैसा देकर फिक्स करते हैं कि कुछ जो है हम मूर्ति बैठाएंगे और मूर्ति का पूजा करेंगे, ये मूर्ति को मैंने फिक्स कर लिया। 12 साल की उम्र में मैंने लक्ष्मी पूजा चालू किया, और उसका बजट था 1200 रुपये, और मेरे पास मात्र 5 रुपए थे, लेकिन वो 1200 रुपया आया, कहीं ना कहीं से आ जाता है। भगवान का अगर आप काम करेंगे, मेरा अनुभव है जीवन का, आज तक जो है लाखों लाखों का कार्यक्रम भी हमने किया है अपने जीवन में, लेकिन कभी पैसे की कमी नहीं आता ही नहीं है। अगर आपका भाव सच्चा है तो, अगर आपके भाव में चोर है तो फिर आप चोरी रह जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी बदनामी होगी उल्टी, इससे अच्छा है कि आप पैसा ले ही ले, ठीक है ना, समझ गया। तो मैं भी बहुत इंसान नहीं हूं, कभी अगर मेरा मन भटका तो मैं आप लोगों को हक देता हूं कि मेरे को बीच बजाना, आप लोग बेइज्जत कर देते, ठीक है, ये ज्ञान तो चोर है, समझ गया ना, आप बोल देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पैसे की कोई बात नहीं है, आप लोग बस जुड़े और जुड़ करके अपने आप को अच्छा बनाए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शोभा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। आदरणीय शोभा।
जी थैंक यू ज्ञान जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई बच्चों को। ओके तो ओवरऑल स्टूडेंट्स को पूरे परिज्ञान का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, ये तो सब समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन जो हमारा पॉइंट है, वो है हमारी स्टडीज कि वो हमें किस तरीके से करना है। नेहा मैम, मुझे आप होस्ट बना दोगे क्या? Yes, yes, one second. हाँ ओके तो जो सब्जेक्ट्स मैं लेने वाली हूँ मोस्टली पेपर 1 है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, देन हमारा हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, पीपल एनवायरमेंट, आईसीटी ज्ञान जी पढ़ाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन भी ज्ञान जी पढ़ाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग मैं कराऊंगी। और पेपर 1 में, पेपर 2 में एनाटॉमी, डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट होगा वो मैं लूंगी। अभी फिलहाल के लिए यही है, बट हो सकता है धीरे धीरे आगे करके हम कुछ चेंजेस करें तो आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोगों को कुछ बीच में ऐसा फील होता है कि मैम यस सर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वी आर रेडी टू डू दैट, क्योंकि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं जैसे ज्ञान जी ने बताया। ओके तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन, हाँ रोहन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आपने हाथ उठाया है, आप बोल सकते हैं। ओके मैम क्या दिख रहा है मेरा पीपीटी दिख रहा है क्या नेहा मैम? ओके ठीक है। तो जैसे पहले भी बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मतलब मैं कोई भी सब्जेक्ट को अगर उठाती हूँ तो मुझे जब तक मुझे ये दिखता नहीं है कि बच्चों को एकदम डीपली चीजें समझ में नहीं आई है। अगर रोहन जी आपका कोई क्वेश्चन है ना तो हम क्लास के एंड में ले लेंगे। ओके आप क्योंकि बार बार शायद हैंड रेज कर रहे हैं। ओके तो बच्चों को पता है कि मैं बहुत डीप, और मेरे मन को शांति नहीं मिलती है जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बच्चों को वो हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अगर समझ में ना आए, इसलिए मैं बार बार रिविजन कराती हूँ। बट इस बार मैंने देखा कि उसकी वजह से, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डीप, मेरे को पता है स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा उसमें समझ बैठ गई होगी, बट उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा डिले हो गया, मैं एक हायर एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाई। ओके नो प्रॉब्लम रोहन जी, इट्स ओके। तो इस बार मैं क्या सोचा है, मैंने प्लानिंग ये की है कि मुझे पता है कि मुझे एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में अच्छा टाइम चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही प्री प्लान किया हुआ है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसको मैं 2 हफ्ते दूंगी, हर एक सब्जेक्ट को 2 हफ्ते दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अगस्त मंथ 15 अगस्त से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी मोस्ट प्रोबेबली। ओके तो उसमें जैसे मैं अगर टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट उठा रही हूँ तो मैं वो पूरे 2 हफ्ते लगाऊंगी उसमें। ओके तो वैसे ही प्लानिंग मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगस्त मंथ में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि मैं 15 अगस्त या 14 अगस्त से क्लास ले पाऊंगी बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स विच इज इन अगस्त मंथ। उसके बाद सितंबर में 2, क्योंकि उसमें 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, तो 2 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, और उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन लूंगी, क्योंकि वो हमेशा मुझे लगता है कि वो पीछे रह जाता है, इसलिए मैंने थर्ड सब्जेक्ट हायर एजुकेशन लिया है। अक्टूबर में लॉजिकल रीजनिंग एक वीक में हो जाता है, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी हो जाता है। कम्युनिकेशन भी एक शॉर्ट सब्जेक्ट है तो वो भी 1 वीक में हो जाएगा। पीपल एनवायरमेंट को 2 हफ्ते लगेंगे। ओके एंड देन नवंबर का मंथ मैंने आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन का हम 2-3 क्लासेस कर सकते हैं, वो तो बट मोस्टली बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है कॉम्प्रिहेंशन, हम नहीं सिखा सकते बच्चों को। और मैथ्स की जो रीजनिंग वाला पार्ट है, अभी ये जो महीना है इसमें इस वाले मंथ में ज्ञान जी मैथ्स कराने वाले हैं, जो मेन मैथ्स है। रीजनिंग अब वो डिपेंड करता है टोटली ज्ञान जी पे, अगर वो मैथ्स रीजनिंग अभी कराना चाहते हैं या फिर मैंने उसको नवंबर मंथ में रखा है, वो हम देखेंगे। ओवरऑल ऐसा डिसाइडेड है, और दिसंबर मंथ में पूरा रिविजन, क्योंकि नवंबर मंथ तक सब कुछ खत्म हो जाएगा तो दिसंबर में हम रिविजन रखेंगे एंड पूरा क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन होना, क्योंकि रिविजन ही मुझे लगता है की है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ही बच्चों के क्लियर नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रह पाएंगे तो मुझे लगता है बच्चे क्वेश्चन एंड आंसर नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीजें बहुत ही जरूरी हैं, एक है रिविजन और एक है क्वेश्चन आंसर। और एवरी फ्राइडे, अगर फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो जो भी फ्राइडे आएगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो जैसे कि हफ्ते में 2 हफ्ते में एक सब्जेक्ट होगा, तो फ्राइडे एंड फ्राइडे 2 फ्राइडे हमारा वो एक सब्जेक्ट का रिविजन होगा। एंड जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम लोग टेस्ट लेंगे। टेस्ट तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं कि हम हर रोज सॉल्व करते हैं, हर क्लास में हम लोग करते हैं, बट एक प्रॉपर टेस्ट होगा जिसमें आपका हम कैपेबिलिटी देखेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा। ओके, तो इतना था ये रिविजन का, ये मेरी प्लानिंग थी। इंटरेक्शन इज द की। जो बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे उनको पता है मुझे क्लास में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे उससे समझ में आता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो मेरे जो बच्चे मेरे क्लास में आएंगे, इंटरेक्शन इज द की। मुझे चाहिए कि बच्चे प्रॉपर इंटरेक्शन करें, बिल्कुल एक भी बच्चा चुप नहीं रहना चाहिए मेरे क्लास में। एवरीडे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन हो गया, फिर बेस से एडवांस की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जिन्होंने पढ़ाई कर चुकी है, जो पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट्स को, मेरे से भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके होंगे, पर हम सबको साथ में लेके चलेंगे और सबसे बेसिक चीज से हम फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। मैं एकदम चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कोशिश करूंगी कि सिंपली उनको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से आप लोगों के दिमाग में बैठा सकूं। पूरा एम यही है कि JRF कर सके, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम दिसंबर में होंगे, क्योंकि ऐसा ही चल रहा है। लास्ट टाइम भी शायद एग्जाम दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ही हुए थे, तो दिसंबर का टारगेट लेके चलते हैं और उस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी। और मेरे को एक और चीज है कि हमारे ओरिएंटेशन में आते तो बच्चे बहुत है, जैसे 64 बच्चे, आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट फ्री है क्लास, है ना। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जब एग्जाम आएगा ना तब पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में शुरू करेंगे, ठीक है ऐप पे है ना वीडियो, बाद में देखेंगे। बट जो बच्चा स्टार्टिंग से क्लास अटेंड करेगा, जो बच्चा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्लास अटेंड करेगा, वो ही बच्चा एक्सेल कर पाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी बच्चे नहीं कर सकते, बट उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आसान रहेगा, सिंपल रहेगा अपने टारगेट को अचीव करना। और एज हर चीज हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे, रिविजन देंगे। जो बच्चा रेगुलर आने, मेरी क्लास में और ज्ञान जी की क्लास में जो बच्चा रेगुलर आना है, वो बच्चे के दिमाग में स्टार्टिंग से ही एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और आगे चल के, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेस पहले बना देते हैं और बाद में फिर हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों की, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं अलग से और रिसर्च अलग से पढ़ रहे हैं तो उसका बेस अलग है, उसका बेस ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बेस, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड अगर मैं फर्स्ट लेके चल रही हूँ, उसको ही देखोगे तो उसमें ही काफी चीजें हैं जो हमारी साइकोलॉजी में भी आती है। तो अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट बेस से ही अगर हमारे साथ चलोगे तो वो ही आपकी की है जो आपको एक्सेल की तरफ लेकर जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज की जो हम डेली पढ़ेंगे, अब ये बच्चों से मैं पर्सनली जुड़ी रहती हूँ और इस बार तो मैं और करूंगी। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारी जो हमने क्लासेस ली थी वो प्री प्लान नहीं थी, हमने प्लानिंग नहीं की थी, हमने सिर्फ एक ऐसे भाव से कि हमें कुछ करना है तो हमने सडनली ये चीज शुरू की थी, तो चीजें प्लान नहीं थी। इस बार चीजें प्लान रहने वाली हैं। हम हर चीज अपने जो नोट्स हैं प्लस जो हमें क्या करना है, कौन से वीक में हमें क्या करना है, वो भी हम एडवांस में लेकर चल रहे हैं। तो इस बार चीजें बहुत अच्छे से होने वाली हैं। तो मेरे क्लास में जो बच्चे आएंगे वो एवरीडे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका हर रोज रिविजन खुद बच्चे अपने घर पे करेंगे। अगले दिन मुझे पर्सनली सब बच्चों से मैं पूछती हूँ और मैं टेस्ट भी लेती हूँ कि क्या आप लोगों ने पहले दिन का क्या पढ़ा था, आपको क्या याद है, क्या याद नहीं है। और ये चीज अगर आप साथ में लेके चलेंगे ना क्लास में अगर आप साथ में मेरे चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हर चीज हमारी जो मेहनत है, जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं बच्चों के पीछे पढ़ती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसलिए मैं चाहती हूँ जितने बच्चे आज ओरिएंटेशन में आए हैं उतने बच्चे रेगुलर बेसिस पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्लास में आए। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम समझ में नहीं आता, है ना, पेपर 1 बहुत से बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप, जब तक मैं आपको मेक श्योर कर रही हूँ कि अगर आप क्लास में बैठोगे, 1 दिन टफ लगेगा, 2 दिन टफ लगेगा, 3 दिन टफ लगेगा, बट 1 हफ्ते के बाद आप लोगों को चीजें आसान लगने लगेगी। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है, मेरे पर्सनल कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको पेपर 1 थोड़ा टफ लगता है तो वो लोग डर के चले जाते। तो डर के कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को डर को फेस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हर बच्चा ऐसा है, बट अगर 1-2 बच्चे भी ऐसे हैं तो मुझे लगता है कि ये मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ कि डरना नहीं है पेपर 1 से। क्योंकि मैं इंग्लिश में नोट्स रहते हैं पर मैं पढ़ाती बहुत ही शुद्ध हिंदी, बहुत शुद्ध नहीं रहेगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों को समझ में आने वाली मेरी लैंग्वेज रहती है। अगर कुछ समझ में ना आए मुझे तुरंत आप लोग अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। जो बच्चे थे मेरे क्लास में उनको पता है
डिस्कशन होता है मेरी क्लास में। मेरे क्लास में ऐसे टीचर और स्टूडेंट वाला नहीं है, वी आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। मेरा पूरा यही रहता है कि जो बच्चे क्लास में उनका अगर एक पॉइंट भी समझ में ना आए तो तुरंत मुझे पूछे, मुझसे क्वेश्चन करे। अगर क्लास के बाद भी कोई डाउट है तो मुझे पूछे, मुझे मैसेज करे, अदरवाइज कॉल करे। मैंने सबको फ्री छूट दी हुई थी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। व्हाट्सएप बेटर रहता है क्योंकि उसमें कैसे एनी टाइम यू कैन मैसेज मी और मैं अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से आपको रिप्लाई कर सकती हूँ और आई कैन कॉल यू बैक। तो पूरा यही मेरा एक स्ट्रैटेजी है और हम धीरे धीरे इन चीजों को और इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों की तरफ से जो भी आपका अब क्लास के एंड में आप लोगों को जो लगता है कि स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस होने चाहिए या कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप वो क्लास के एंड में बता सकते हैं। मेरी अब तक की स्ट्रैटेजी इतनी है और मैं इस तरीके से चलने वाली हूँ। ओके, ठीक है मैम, ओवर टू यू नेहा मैम। नेहा मैम, ज्ञान जी। ओके, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। आदरणीय नेहा मैम को आप होस्ट बना दीजिए और उनको अनम्यूट भी कर दीजिए सो दैट शी कैन टेक ओवर। ठीक है, तो नाउ आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे तरफ से इतनी ही बात बतानी थी। अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क ऑन चैट ऑल्सो, और अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक एक करके हम अनम्यूट करेंगे एंड देन हम अपनी बात को करेंगे। ठीक है? ज्ञान जी, मैंने मैम को, मैम ही होस्ट है परिज्ञान टीम से। नहीं नहीं, आप होस्ट है क्योंकि आप बोल रही है ना दूसरी। हाँ, नहीं, ओके ओके, आई थिंक मैम। मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, मेरे ख्याल से मैम नहीं है क्लास में, आप देखो। नहीं नहीं है, टीम परिज्ञान को आप बनाइए। टीम परिज्ञान से जुड़ी हुई है मैम। हाँ उस हाँ, टीम परिज्ञान होस्ट है ना, मैं आपको बनाती हूँ, आप करो। अरे नहीं, आप अच्छा हाँ, आप मेरे को मैं आपको बनाती हूँ, हाँ। ओके, बना दिया आपने? ओके, देन मैं यस मैम, मैंने बना दिया आपको होस्ट। अब आप कंटिन्यू कीजिए। Yes, thank you so much. So, thank you, sir, ma'am, for for this power packed introduction about what are we going to do. So, dear members, if you could tell us in the chat box how many of y'all are really going to be committed till the very end of this entire course that we would be doing. Raise your hand. अगर आप आज हाथ खड़े कर रहे हो, that means you will be committed. Sarita ji, Tanuja, then Kiran ji, Suman Kanta ji, Lakshmi ji, Neeru ji, Seema ji. So mind हाँ, अपने हाथ खड़े किए, so that you raised your hand, so that you are taking a resolution that you are going to be committed. Smitanjali ji, Neha ji, Amisha ji, Vaishali ji, Lohit ji, आरती जी, स्नेहल जी, दीपिका जी, कृष्ण कुमार, ओके, साक्षी, कौशल्या, आशुतोष, रश्मि जी, अंजू, मकरन जी, उज्ज्वला, रोहन, नुपुर, संध्या रानी, देवयानी जी, रेणु जी, सुषमा जी, देवयानी जी, मनु, आरती, पंचामिया, Rani, and yes, Tanu. I'm purposely saying the names of each and every one of you because I really want कि मैं बाद में check करूँ how many will be there. So, dear members, जैसे आप सभी को पता होगा, it is a journey which is going to take your efforts
फिर वो चाहे फिजिकल लेवल में हो या फिर मेंटल लेवल में। फिजिकल लेवल में कैसे? बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रिलिंग इट ऑल, कभी आपको लगेगा नो डीमोटिवेट होगा, देन वी हैव अ कम्युनिटी, सो दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिटी विच विल बी गोइंग टू हेल्प अस आउट टू इंस्पायर ईच एंड एवरी वन, राइट? तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टेस्ट को सॉल्व करे। जो भी डाउट्स हैं यू कैन पुट इट ऑन द ग्रुप, डू नॉट पुट इन पर्सनल चैट ऑफ एनी ऑफ द टीचर। अगर आपको टीचर कहते हैं तो फिर आप डाल सकते हैं, बट इन माई ओपिनियन यू शुड पुट इट ऑन द ग्रुप सो दैट वो वही का वही क्लैरिफाई हो जाए। जैसे आपको पता है हमारे 3 ग्रुप्स है एंड एवरी ग्रुप इज ऑलमोस्ट फुल नाउ, सो इट्स बेटर कि आप ग्रुप में डालो ताकि टीचर्स का भी हैसल कम हो और वो एक जगह देख ले, राइट? एंड अनदर थिंग, आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करी थी, इट वाज सेइंग द सेम थिंग। जब हम किसी को हेल्प करते हैं देन गॉड हेल्प्स अस इन टर्न, राइट? बिकॉज एवरीबडी इज गॉड चाइल्ड्स, राइट? भगवान के बच्चे हैं सभी। सो अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी को हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन शेयरिंग दिस मैसेज, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ ही बीइंग योर गुड फ्रेंड। ही विल बी थैंकफुल फॉर यू दैट you have showed him the right path. Okay, so there was some question regarding timings. Now because we have got so many participants, we also want to know your opinion for the timings as well. तो हम आपको Google form share करेंगे which will be helping us to understand your point of view. तो we will also list our considerations क्योंकि हमारे teachers भी बहुत busy हैं, they are students as well as preparing for their own aspirations, right? So definitely we will come up with a more generalized timings which will be suitable for each of us. Then another, अगर आप चाहे तो आप कुछ questions ले सकते हैं, so you can put on some the questions and with that I would like to call upon वैसे तो हमारे बहुत सारे members हैं ही, पर एक रश्मि जी को मैं बुलाना चाहूंगी। रश्मि जी, if you could tell us in few words about how you feel about Parigyan as a united family. जी नमस्ते नेहा जी। मैं एक बार ना स्पॉटलाइट करती हूँ, 1 सेकंड। यस, नमस्ते। हाँ नेहा जी नमस्ते, ज्ञान जी नमस्ते, शोभा जी नमस्ते और सभी उपस्थित भाई बहनों को प्रणाम। ये परिज्ञान परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ वो हमने ऋग्वेद का मंत्र सीखा है ना, सम गच्छध्वम सम वदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। तो ये बराबर ऐसा ही परिवार है कि हम सब साथ में जाते हैं। कोई इधर जिसको नहीं कुछ आता है उसको भी सिखाते रहते एकदम कि क्यों नहीं आता है, पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा मैंने नेहा जी को देखा है, मैंने ज्ञान जी को देखा है, मैंने इस तरह से शोभा जी को, कि हमारे पीछे कि नहीं तुम्हें आएगा, क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं समझ में आता है, और इतना बढ़िया समझाएंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। मैं 2 साल से जुड़ी हूँ। कुछ कारणवश मैंने इस बार एग्जाम नहीं दी, पिछली बार मैंने एग्जाम दी, लेकिन मेरी भी कार्य की व्यस्तता, हम भी थोड़ा सोशल वर्क भी करते हैं, तो अभी हम स्टूडेंट की उम्र में तो नहीं है, लेकिन जो हमारे ये टीचर्स हैं उनके माता पिता की उम्र में हम इतनी उम्र में है, फिर भी हमने हमारा धैर्य नहीं खोया है। हम एग्जाम दे के रहेंगे और मेहनत भी करेंगे। इस बार तो बराबर मेहनत करनी है, और हमें ये जो हमारे टीचर्स हैं हमारे बच्चे समान है, उनका हमें नाम बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है और परिज्ञान को बहुत ऊपर लाना है। और सभी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ, आप सभी जुड़े, आप देखें कैसा सिखा रहे हैं, और कुछ भी इधर कोई वांछा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, और हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है हमें कि हर बार हम इधर इस परिवार से जुड़े रहते हैं। तो मैं ये सभी हमारे टीचर से उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे परिवार को हम बहुत बड़ा बनाएंगे, और सभी एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ेंगे। नमस्ते। yes,
Thank you, Rashmi Didi. So, dear members, now in short about vote of thanks. This everything wouldn't have been possible without your support. जैसे हमारे members तो शुरुआती दौर में थोड़े से थे, but then it went on as a big community, है ना? तो thank you all for sharing this message and also helping us connect with all the new members who have joined. Now, may I know how many are okay? बाकी सभी अभी हाथों को नीचे करिए. May I know how many are new over here, joined here for the first time, or who joined here for the first time? बाकी अपने हाथों को नीचे करें. So I can see there are quite many, है ना? तो you have to be really thankful to your friends who have shared this message with you all. और चलो, let us embark on this beautiful journey where we are going to collaborate together, help each other to attain this beautiful goal of UGC NET JRF to attain your professorship in yoga, जो भी आप चाहते हैं, फिर वो चाहे रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना हो या फिर एकेडमिक फील्ड में. ओके, सो विद दैट few more points. आपको टाइमिंग्स तो बताई जाएंगी ही, साथ ही साथ stay connected in your group. You can, for any doubts, you can always put it on the group itself, है ना? Avoid messaging personally to your teacher. आप चाहे तो वैसे आपके personal teachers हैं तो अगर allow करते तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो खुद कहती हूँ कि प्लीज ग्रुप में डालो मुझे, और मुझे बस @@ कर देना, then I will check. क्योंकि कभी कभार जैसे I have this duty of sharing the messages as well, तो I sometimes fail to reply to your personal queries. तो या तो आप मुझे मेल कर दीजिए या फिर अपने ग्रुप, जिस ग्रुप में आप हो उसी में आप मैसेज डाल दीजिए. आई विल लुक इनटू. ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू से एज अ कंक्लूजन लेट्स, जैसे रश्मि ने कहा, संगच्छत्वम संवदत्वम संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते. तो अब सभी मिलके उस गोल को अचीव करते हैं, बिकॉज देयर इज दिस पावर ऑफ कम्युनिटी विच वी शुड बी फीलिंग, राइट? सो विद दैट आई वुड लाइक टू टेक फ्यू क्वेश्चंस. योगा जो मास्टर्स नहीं किए हुए हैं और इस ग्रुप में जुड़े हैं और लाइक इस सेशन में जुड़े हैं विद द थॉट कि समथिंग अबाउट योगा, व्हाट इज इट? तो लेट मी टेल यू, दिस इज अ प्रेपरेटरी foundation platform for preparing you for the UGC NET JRF examination, जिसमें सिलेबस से रिलेटेड मेजर सिखाना हमारा टारगेट रहता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज सर सेड, कि जीवन जीने की कला है योग, राइट? तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. If not your exam related goal, maybe you can get a whole lot of beautiful knowledge with all of us joining, right? So with that, Gyan sir, can we conclude? If yes, Shobha ma'am, can we conclude? If yes, okay. Actually, you want to say something? Okay, so let me unmute you. हाँ जी. ओके, जैसा मैंने कहा था कि बच्चे जो है जो ओरिएंटेशन में आते हैं पर क्लास में मुझे दिखते नहीं. शुरुआत में एनर्जी बहुत हाई रहती है, वही मैंने पूछा, इसलिए आई हैव सीन दिस थिंग. तो ये नॉर्मल सी बात है, बट जो तर गया ना, एंड तक तर गया, वो सच में कर गया, है ना? इवन दीज हमारी शोभा जी, ज्ञान जी, ये मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं पहले. So I used to teach them, but I've seen that spark within them, that they had been so passionate to even teach during their studies, है ना? तो क्या पता हमें आगे जाके आप में से भी कोई और मिले, है ना, टू टेक अलोंग दिस परिज्ञान. क्योंकि हमें मैम टीम बनानी है, तो सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. और वो वॉलंटियरशिप तभी आएगी जब हमें आपके अंदर वो पैशन दिखेगा, है ना? दैट सेम पैशन व्हिच आई हैड सीन इन ज्ञान एंड शोभा. सो विद दैट, ज्ञान सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग और कैन वी कंक्लूड? लेट मी अनम्यूट यू. हाँ, तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, बिकॉज पहले ही बताए हैं तो ये 7 का है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट एक्सटेंड भी करे, बट अपने आप को आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर मन में कोई अनम्यूट का ऑप्शन. सो दे विल हैव टू आस्क. हैंड रेज कीजिए, आप 1 बाय 1 अनम्यूट कर देंगे.
ऐसे You करो। can ask forward over here. बाकी सभी हाथ नीचे करो, है ना, so that हाँ। only we'll understand. So otherwise आप भले अपने ग्रुप में डाल सकते हैं क्वेश्चंस, है ना, ग्रुप में आप आराम से डाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको क्लास की मिल जाएगी इस वाले, आप देख सकते हैं अगर आपने बीच में ज्वाइन किया हो तो। एंड यस, विद दैट मैम क्वेश्चन, अच्छा कुछ लोगों का डाउट है तो क्वेश्चंस, सर टाइम हो भी गया है ना अभी, फिर बहुत जनों को डिनर ओके, यू कैन लीव, यू मेक मी होस्ट नो, और आप लीव हाँ, करते सो हैं। वही, सो मेंबर्स आप चाहे तो अपने क्वेश्चंस अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके, आई एम शेयरिंग दिस व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट इन केस यू हैव joined with the Zoom link and you're not there a part of our group. Now जो members group 1 group 2 में already है, please don't join the group 3, it is simply going to redundant, आपको messages आएंगे, है ना। और तीसरी बात आपसे कहनी है कि ये गुरुजन जो आपके सामने है, ये सच में बहुत बहुत लाइक अपनी निष्ठा से आपके सामने आए हैं। सो यू शुड ऑल्सो बी पैशनेट इनफ टू ज्वाइन लाइव, है ना, क्योंकि इट्स लाइक वन वे ट्रैफिक जो होता है, वी वांट यू ऑल्सो टू ऑल्सो इंटरेक्ट ड्यूरिंग द क्लासेस, तभी टीचर्स को लगेगा अरे दिस पर्सन इज रियली पैशनेट, है ना। So it's very important to join live. That is why we also giving the Google form for knowing your opinion about the timings. Okay, and हाँ, हमारा ऐप है, तो जो पहले वाले मेंबर्स रह चुके हैं वो चाहे तो अपने ऐप के फीडबैक आपको कैसा है वो भी मुझे हमें शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो रेटिंग्स भी दे दीजिएगा, इट विल हेल्प अस आल्सो एंड अदर मेंबर्स टू नो अबाउट परिज्ञान ऐप। आप चाहे तो अपने गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, द लिंक विल बी आल्सो शेयर टू योर इन योर पर्सनल ग्रुप्स। विद दैट, इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, let us conclude. Yeah. Okay, समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए let us conclude. Okay, so फिर भी okay, just a minute, I'll stop share. Okay. गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाल गोपाल गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण गोविंद गोपी गोपाल गोपाल गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल Parijnan is signing off for now. We all see you in the respective time. Even the date of our actual session is going to be 1st of August. Okay, so आपको मुझे मैसेज आ जाएगा। Thank you everyone. गोविंद कृष्ण कृष्ण गोपी गोपाल कृष्ण